Good evening, everyone. Before we begin today's session, I would like to briefly introduce Sarthi Kanun Seva Foundation. Sarthi Kanun Seva Foundation is a youth led legal aid and awareness initiative working to bridge the gap between law and the common people. Through legal awareness programs, workshops, and educational initiatives, the foundation aims to make legal knowledge more accessible and practical. As part of our 3-day interactive seminar for law students, today is day 2, focusing on career opportunities in law. In today's session, we will explore various career pathways available to law students, understand the opportunities and challenges across legal fields, and gain practical insights into building a successful career in law. To guide us through this important and practical discussion, we are privileged to have with us our distinguished speaker, Mr. Abhinav Garg. He is an advocate on record at the Supreme Court of India and Joint Secretary, Central Delhi Court Bar Association. He has professional expertise in PMLA, ED matters, anti corruption, and bail, and has also served as panel counsel at the Serious Fraud Investigation Office. We are delighted to have you with us, sir, and we look forward to learning from your experience and insights. A very warm welcome to you. Over to you, sir. Good evening, and thank you, Avantika. Thank you for introducing me. So, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. So, I will again request you all to Good evening, switch on sir. your camera. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening, evening. I will request you to switch on your camera. This is very informal session, so you don't worry about it. But if you on the camera, so it will be, I feel good, it will be an interactive session. We'll wait for 30 seconds. Please switch on your camera and then we will start the session. If you want to be a lawyer, then you don't have to hesitate. सबसे पहले हेजिटेशन रिमूव करनी पड़ेगी. वैसे आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो यू गाइज विल एंजॉय. Okay, so shall we start? Yes, sir. Yes. So today we will talk about the career counseling, what all options we have in the law. So can anyone tell me the career options, what you think that after completing your 3 years, what you have thought to become, what attracts you to take admission in law? Anyone? Individual lawyer. Individual lawyers. Good. I want everyone participation. Sir, you can go in judiciary, litigation, corporate lawyers. What you want to do? I want to go in judiciary. Okay, good. Ankit? और कोई? Independent lawyer. Okay. और? I'm going for judiciary. Okay. Independent lawyer, judiciary और? Litigation, sir. Litigation. Higher education. Higher education. What next? Sir, patent attorney. Would you advise to Patent do attorney. LLM after LLB? Sorry? Nityanand. Would you advise to do LLM after LLB? LLM after LLB or? Would you advise to do it? करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर? I will tell. We are just looking after the option. Then I will tell what is the best option or what you can do. You have to decide. Bas
Only 3 options. We Sir. have received only 3 options. Patent Sir, in litigation, sir. corporate law. Right, Simran. IP Or litigation. IP litigation, IP sir. litigation or so सर we पीपी have बन सकते हैं, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर. public prosecutor. Good. और कुछ Sir, professor is also one option. professor. Good. और Sir, कुछ I want to get into legislative policy. legislative policy. Good. New option. और Legal advisor. चलो Legal officer. Legal advisor. In banks. Legal officer in legal banks. officer in bank. Good. New option. और Tribunals in environmental science law. क्या Various tribunal that states in the environmental law like NGT and all that. आपकी आवाज क्लियर नहीं है. Please change your name. अच्छा चलो. So we got several options: litigation, individual practice, IP litigation, judiciary, corporate, research, professor. So there are environmental law, NGT. So apart from this, there are lot many options nowadays we have with us after the law. अच्छा, litigation और individual lawyer में क्या difference है? कोई बता पाएगा? सर लिटिगेशन फॉर्म्स में भी होती है और किसी सीनियर के नीचे भी होती. अच्छा, और देखो, litigation और individual practice is the same thing. Litigation means law practice. Either you do it individually, either do it with the law firm. Appearing in court, practicing is a litigation. So mostly people have very few options. People think that you can go into litigation. Thereafter, you can go into corporate law firms. Thereafter, judiciary. These are the best option we have. The students think. Apart from this, there are lot many options you have. You can explore. With government, sir, Sorry? we can work with government. Yeah, you can work with government or Apart from that, in-house counsel or or environment law, in cyber environment law, criminal law, civil law. These all comes under one platform, litigation. You Okay. can be an environmental lawyer. You can practice environmental law. You can be a criminal lawyer. You can practice litigation, criminal lawyer. You may be a civil lawyer. You may be a tax lawyer. So all these comes under. There are different laws. You can practice tax. You can go for tribunal, NGT tribunal, environmental law, criminal. Most is district court, high court. So this is litigation. Basically, litigation is a courtroom practice. Working under senior advocate, start with the internship, then you join after enrollment, then you work with some time senior, then you practice on your own, arguing matter before courts, tribunal. So this comes under litigation. If you want to go in a structured law firm, then you want to decide that you want to be in structured form, like corporate law firms, corporate law, merger acquisition, contract deals, regulatory compliances, business, IP, IP, IP. This comes under corporate law. So you can be part of structured law firm, corporate law firm. cyber security, sir. Cyber security, everything can come under corporate. Basically, if you talk about the law firm, so it's a structured form of practice. 4-5 people or a senior come under one platform. They made a law firm, registered a firm, and then they practice in different field, different laws. If you want to go in corporate, then merger acquisition,
contract deal, business deal. This will come under corporate law. Then judiciary, becoming a judge, judicial service exam, clerking for judicial. Somebody told me PP, public prosecutor. So you can give the exams for APP. Initially, you will enroll or you will give exam for APP. There are several exams. Law, Supreme Court law clerk, they also have the exam. So if you want to go for fixed I say remuneration or government judicial service, then you can opt for judiciary, APP, law clerk. But see, law clerk is only for few years, like let's suppose it may be 1 year, 2 year, or 3 year. This is not permanent job. But if you go for APP, if you go for judiciary, if you go for PSUs, so they have fixed remuneration, or you can say this is a service. Apart from this, apart from litigation, corporate law, and judiciary, there are lot many options nowadays. We have in-house counsel. Can anyone tell me the meaning of in-house counsel? सर उनके ऑफिस में बैठ के ही काम करना. गुड. और कोई? सर कंपनीज जो होती बड़ी बड़ी जैसे इन्फोसिस, TCS, एक्स्ट्रा, उनमें जो उनके लीगल मैटर्स को डील करती है वो इन हाउस काउंसिल्स होती हैं. हाँ, इन हाउस काउंसिल मतलब लाइक कंपनी में बैठ के काम करना, और जो उनको मतलब कोर्ट रूम में नहीं जाना पड़ता है, लेकिन जो कोर्ट रूम के एडवोकेट्स होते हैं उनके साथ पूरा डीलिंग करना, और उनके साथ भी और अपने स्टाफ के साथ भी. Yes, basically you can be the part of internal team of corporate law, internal team of company, right? You can be part of जो भी internal company की litigation, contract, you can involve in the business, client dealing and everything. So you can be a part of fixed remuneration. As a salary, you can join a company and become an in-house counsel. Then there is an option of public policy and government policy writing, drafting. So you can be part of, like when government design a policy, they need several research options. So you can be part of that legislative drafting, regulatory bodies. Then thereafter, academic and research. So you can go for academic research. But how you can go for academic research? Academic, you can be a professor. But the professor after LLB, then LLM, then you have to qualify NET and then PhD. After qualifying NET, you can join as an assistant professor. Also, the other option, you can join for research if you enroll for PhD. So you can be a part of research. But for that, you have to complete your LLM and NET. I will again request you to please switch on your camera. हम लोग सेशन बहुत लेट ले रहे हैं क्या? थोड़ा लेट हो गया आज? यस सर, थोड़ा सा हो गया है. अच्छा कोई बात नहीं. वैसे तो मतलब जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग तो 10, 11, 12 बजे तक आराम से पढ़ाई करते थे, सेशन यूज करते थे. बट एनीवेज, उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन. आर्बिट्रेशन अभी नेगोशिएशन, अभी मीडिएशन एक्ट की बातें चल रही हैं. आर्बिट्रेशन नेगोशिएशन में बहुत अच्छा स्कोप है. कंप्लायंस, जो कंपनी के कंप्लायंसेस होते हैं उसमें काफी अच्छा ऑप्शन है. अभी एक नया एवेन्यू, लीगल जर्नलिज्म, explaining the law through writing, media analysis. Live law, you can take example of live law. How many of you know about live law, bar and bench? I know, sir. How many of you know? So today your task is to search live law.
So this is good option for if you have interest in writing, you can go for legal journalism. And thereafter again this new option, legal tech, startup building tool for lawyers. If you are more inclined towards sometimes people join law after completing their technical degree, let's suppose B.Tech, computer science, say, so they can join a startup company for building tools for lawyers. There are a lot many tools are coming recently. There are so many tools coming for lawyers, for drafting, for research. So you can join that as well. Thereafter, international law and NGOs. You can go for NGO, international law, human rights. Last but not the least, civil services. You can take. I hope there are a lot many students who must be preparing for civil services. How many of you are preparing for civil services? How many? No one? Oh, 1, 2, 3, 4. Good. I think it will be a huge number because in 4, 5. So you can take law as an option if you are preparing for civil services. Now the question comes how to explore, how to design your 3 years, how to design your 3 years after enrolling in law. I hope all you are from first year, right? Yes, sir. Yes, sir. So how Yes, to sir. do you have a what is your plan for future? Can anyone tell me? Sir, I want to क्या do सोच के private. मतलब what do you think कि हाँ लॉ ज्वाइन कर लिया अब क्या होगा, क्या करेंगे आगे? सर मैंने ऐसा सोचा है कि लाइक जो प्राइवेट नोटरी वगैरह होता है और जैसे दस्तावेज वगैरह एफिडेविट वगैरह वो सब करने के लिए। अच्छा, गुड. I want everyone to participate. कुछ भी ये this is very easy subject. There is nothing to what you want to become. If you can't speak before the platform, you can't be a lawyer. You don't hesitate to speak. So we can join internships in the fields we are interested in during the 3-year span that we have, and Yes, then eventually we can go for a job if we want to. yes. We'll come to that. Or Sir, we can also join the army through JAG entry, that is Joint Advocate General. this is good option, JAG. How many of you know about JAG? Good. 2, 3, I've heard, 5. sir, but I don't know. So you search today for JAG. This is a very good option for if you want to go in army and on the same time you want to live civil life. Or सर मैंने ये सोचा है कि ड्यूरिंग एलएलबी मैं अपना अच्छे से पढ़ाई करूंगा और एआईबी का और साथ में एपीओ का प्रिपरेशन करूंगा बहुत और अच्छा, एआईबी जब क्लियर हो जाएगा तो 3 साल प्रैक्टिस करूंगा और फिर जुडिशरी के लिए ट्राई करूंगा। बहुत अच्छा. सर मैंने सोचा है कि एलएलबी के साथ साथ मैं पेटेंट एजेंट का एग्जाम निकालूंगा और आईपी ऑटर्नरी वगैरह मतलब आईपी लॉ फॉर्म्स वगैरह में जाऊंगा। अच्छा, आपका ये टेक्निकल बैकग्राउंड है आशीष? यस सर, अच्छा, क्या किया आई हैव आपने? डन बीटेक।
हाँ, बीटेक के सर। so for BTech people this is a good option, you can explore the patent attorney, अच्छा, बहुत अच्छा स्कोप है। बट सर मैं पेटेंट एजेंट का पहले से पढ़ रहा हूँ, तो सर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट कम आ रहा है, तो आई वांट टू बी सिट इन लिटिगेशंस लाइक पीएमएलए एंड आईबीसी। बहुत अच्छा। तो सर लेकिन अभी थोड़ा मैं लेंदी नहीं होता है? सर मैं थोड़ा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा इन चीज़ों को कि पीएमएलए वगैरह कैसा है। सो आई विल आस्क यू लेटर ऑन, बट आप पहले। देखो, सबसे पहले हमें जो हमने लॉ ज्वाइन कर लिया, अब आगे क्या, सबसे पहले आती है कि हमने पढ़ाई चालू कर दी, केस मटेरियल, बेयर एक्ट, उसके बाद इंटर्नशिप्स कैसे करनी है, इंटर्नशिप कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन करना है, क्या करना है 3 साल। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 3 साल में कितनी इंटर्नशिप करनी है। किसी का मन है मैं कॉर्पोरेट लिटिगेशन में जाना है, किसी का मन है लॉ फर्म में जाना है, किसी का मन है लिटिगेशन करनी है, किसी का मन है इंडिविजुअल लॉयर के साथ जाना है। तो कभी भी जहाँ जब चांस मिले सर थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, क्या, जहाँ पे भी चांस मिले सर थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे हाँ भी बिल्कुल स्कोप बिल्कुल कर सकते। देखो, इंटर्नशिप कभी भी जब हम लॉ ज्वाइन करते हैं, यू मस्ट बी हैविंग समथिंग इन योर माइंड कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, मुझे लिटिगेशन में जाना है, बट हमेशा एक्सप्लोर करना है। अभी तो हमें पता ही नहीं है लिटिगेशन कैसा है, वेदर आई कैन डू इट फॉर नॉट, कॉर्पोरेट लॉ फर्म में हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है। अभी आशीष ने बताया कि मुझे पेटेंट अटॉर्नी बनना है, लेकिन मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो दिस गोज विथ एवरीवन कि हमें पता है हमें लिटिगेशन में जाना है, लेकिन हो सकता है 2 महीने बाद हमें लगे नहीं, मैं लिटिगेशन नहीं कर सकता हूँ। लिटिगेशन ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे ये लग सकता है कि मैं लिटिगेशन नहीं, मुझे तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जाना है, मुझे तो इन हाउस काउंसिल बनना है। तो वो एक्सप्लोर कैसे करेंगे? सर, दिस 3 years इज द बेस्ट सर सब टाइम। जगह थोड़ा थोड़ा सब जगह करके, जहाँ पे अपने को लगे कि यहाँ पे अपने को लग रहा है प्रॉपर है अपने लिए, वो कर सकते हैं ना सर फाइनल ऐसे। दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर। हम अपने 3 साल में 4 या 5 इंटर्नशिप करेंगे। 1 साल में वी कैन मेक अ प्लान कि हमें 1 साल में 1 इंटर्नशिप करनी है, 2 इंटर्नशिप करनी है, 1 लिटिगेशन में करना है, 1 कॉर्पोरेट लॉ फर्म में करना है, 1 जुडिशरी में करना है, 1 किसी एपीपी के साथ करना है। तो ये अलग अलग, जैसे ही जब हम 5 इंटर्नशिप या 5 जगह अलग अलग काम करेंगे, सो दैट वी विल गेट टू नो क्या हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। जब हम लॉ करते हैं या कोई भी फील्ड करते हैं, लॉ, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली लॉ की बात करते हैं, जब मैं भी आया था तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या करना है। सो वी गो फॉर, अच्छा लिटिगेशन करना है, लिटिगेशन में मेरा इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्ट है तो मैं कॉर्पोरेट लॉयर बनूंगा, मुझे लॉ फर्म खोलनी है, मैं लॉ करूंगा, मैं लॉ फर्म बनूंगा। जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि मैं तो लॉ फर्म में काम नहीं कर सकता, मैं इन हाउस काउंसिल नहीं बन सकता, या मुझे जुडिशरी, जब मैं गया, जब जुडिशरी में बैठा तो मुझे पता चला वहां तो 8-8 घंटे की शिफ्ट है, वहां तो बहुत बैठना पड़ेगा। तो मुझे लगा यार मैं तो जुडिशरी नहीं कर पाऊंगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग टू एक्सप्लोर कि हमें जाना कहाँ है एक्चुअली में, where we want to do, where we want to go, and this is the most important thing to explore कि 1 2 3 4 5 इस 5 ऑप्शन पे हमें जाना है कॉर्पोरेट लॉ, लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो लिटिगेशन में है। मैंने चूज किया इन्वायरमेंटल लॉ, कि इन्वायरमेंटल लॉ की प्रैक्टिस करना है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो क्रिमिनल लॉ में आ रहा है। जब मैंने पेटेंट का एग्जाम दिया तो मुझे पता चला यार पेटेंट तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे तो इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस करनी है, मुझे तो सोसाइटी सर्विस करनी है, तो मैं एनजीओ में जाऊंगा। तो सबसे पहला हमारा काम है एक्सप्लोर करना कि हम अलग अलग जगह, 4-5 जगह हम इंटर्नशिप करें और ये पता करें कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, और दूसरी बात हम जाना कहाँ चाहते हैं और हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, ये 2 अलग अलग बातें हैं। उसके बाद आता है मूट कोर्ट। जब जो हमारा 3 साल है, 3 years और 5 years,
मूट कोर्ट है। मूट कोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? जो स्टूडेंट अज्यूम कि यार हमारा अगर हमें लिटिगेशन में नहीं जाना है तो हमें मूट कोर्ट तो करने की जरूरत ही नहीं है। अभी मूट कोर्ट स्टार्ट हो गया है? नो सर। हाँ, नो मूट सर। कोर्ट नो सर। किसको पता है मूट कोर्ट हाँ क्या सर। होता है? आपको पता है मूट कोर्ट क्या होता है? यस सर। क्या होता है एक बताओ कोई। सर फिक्शनल मूट केसेस कोर्ट के साथ वो रियल कोर्ट रूम एक्सपीरियंस होता है सर। गुड। तो मूट कोर्ट हमें ये समझ आता है कि अगर हमें लिटिगेशन में जाना है तो हमें मूट कोर्ट करना है, लेकिन मूट कोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। मूट कोर्ट से हमारी जो बिल्डिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होती है। जब हम मूट कोर्ट ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम की रिसर्च की क्या है प्रॉब्लम, आर्ग्यूमेंट तैयार करते हैं, चीजों को कंपोज करते हैं, जजमेंट्स पढ़ते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। तो एक मूट कोर्ट करने से कितनी सारी स्किल्स इंप्रूव होती है। तो मूट कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, दोज हु आर लॉ स्टूडेंट्स। रिसर्च राइटिंग, अपने 3 साल में हमें एटलीस्ट 2 पेपर तो जरूर लिखने चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट्स। कुछ भी पब्लिश समथिंग, ब्लॉग, आर्टिकल, राइटिंग। एज अ लॉयर हमारा काम ही लिखना है, सुनना है, बोलना है, रिसर्च करना है। These are the basic skills a lawyer should have. रिसर्च करेंगे तो 10 चीजें पता चलती है। जब हम आर्टिकल लिखेंगे, ब्लॉग लिखेंगे तो उसके लिए रिसर्च चाहिए। तो जब रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें पता है, टॉपिक डिसाइड करना कैसे क्या होता है, क्या चीजें चल रही हैं, लॉ क्या, उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या लॉज हैं, क्या जजमेंट्स हैं। सो यू विल हैव एन आइडिया। तो एक लॉ स्टूडेंट को अपने 3 इयर्स, और इफ यू आर इन 3 इयर्स एटलीस्ट 2 पेपर, इफ यू आर 5 ईयर, इफ यू आर इन 5 इयर्स एटलीस्ट 3 to 4 पेपर। Exploring, talking to the senior is a very important. When you are exploring, you talk to your senior how they have spent their time, their 3 years, how they spent their second semester, third semester, where they have done their internships. They will share their experience. You will got to know कि हाँ अच्छा मैंने यहाँ ये चीजें, हमने ये गलती करी, या ये हम ये कर सकते हैं। Talk to Hello, your sir. seniors, those who are. Hello. Hello. Yes, Vineet. Yes, sir. My question was regarding the moot court. Sir, I have like done 2 or 3 these national moot courts. So, what are the international moot courts which we should do? See, there are I think there are 2-3 international moot courts. I don't know. From our type, there are different. So you check with the online platform which all international moot courts are there. So they organize international moot courts annually. See, it is not about which moot court we should choose. It is about doing it. Experience. So once Yes, sir, you regarding get that into it, only, because there are like many of them are there like Viz Vienna and arbitration moots are you can there. do So anyone. that's it. You can do anyone. There is no particular moot court that this is better, this is less. This is all about your skill enhancement. This is all about your experience.
how to improve your skill. There is no such thing, there is no such course to improve your skill as a lawyer. So a lawyer must have good drafting skill, good writing skill, let's say good speaking, good orator, good listener. So you will not get into all these skill in one day. It may take some time. But slowly, gradually, when you go into it, you have to learn all the skills if you want to be a good lawyer. सर अगर कोई पर्सन पब्लिश करना चाहता है रिसर्च पेपर और सर वो मतलब जानता है रिसर्च पेपर क्या है, चीज़ों को पढ़ा लिखा है, किया भी है, बट वो साइंस बैकग्राउंड का, तो सर जैसे कि बाकी चीज़ों का नॉलेज को, अगर बाकी फील्ड के नॉलेज को कितना इसमें हेल्प करेगी, और रिसर्च पेपर पब्लिश करना जनरल से कैसे कनेक्ट करें। आधा तो पेड पब्लिश कर देते हैं, बहुत सारे लोग करके अपनी पीएचडी भी सबमिट कर रही हैं, मतलब लॉ फील्ड के लोगों को जैसे मैंने देखा है। रियल रिसर्च पेपर उससे इंटरनेशनल वैल्यूएशन हो उसकी, कैसे जाए, पाथ क्या होगा सर? पाथ में ही फंसता है बच्चा, तो सर प्लीज अगर आइडिया हो इसका बताइए सर। देखो, पाथ के लिए यू कैन रिसर्च ऑनलाइन, यू कैन कनेक्ट मी वन ऑन वन कि हाउ टू गो अबाउट द प्रोसीजर। सर एक चीज और सर, इसमें प्रोसीजर में एक चीज आती है सर कि जैसे गाइड कई सारे हैं तो क्रेडिबिलिटी ले लेते हैं, जनरली होता है सर, तो उसको हम कैसे पकड़े कि ये गाइड सही होगा, इसके साथ हमें कनेक्ट होना चाहिए। गाइड ऐसा, सारे गाइड अच्छे होते हैं। आपका ये इंटरेस्ट है कि जो गाइड आपके साथ है उनका इंटरेस्ट क्या है, कि वो आपको कितनी अच्छे से वो उस टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो आपको कितनी अच्छी से कितना ज्यादा हेल्प कर पाते हैं टू गेट इनटू इट। कैसे जान पाएंगे सर कि हमको इस चीज में करना चाहिए? कैसे हम जान पाएंगे? अभी मतलब जैसे कि लॉ को नहीं जानता, बाकी फील्ड को समझता हूँ, तो सर वो कैसे जान पाऊंगा कि नहीं ये बेटर होगा? और करियर पाथ जैसे हम चेंज कर रहे हैं सर, वैसे मैं दूसरे करियर से हूँ तो इसको चेंज करना है, तो सर कैसे कैसे मतलब वो एक लाइफ थोड़ी स्मूथ भी हो जाए और चल भी जाए, और अपने करियर का जो मतलब एक है ना मोटिव जो है लाइफ का, कि लॉ में एक नाम बनाना है, जो भी करना आपको, या इंटरनेशनली जाना, तो वो कैसे अपने आप को कर पाए, ये सर बहुत कंफ्यूजन आती है लाइफ में। देखिए, ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक, आजकल इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल है कि कौन सा टॉपिक है। जब हम पीएचडी करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई टॉपिक आता है, अच्छा हमें इंटरनेशनल लॉ, एयर स्पेस लॉ पे रिसर्च करनी है। एयर स्पेस लॉ की क्या, एयर स्पेस में क्या क्या चीजें हो रही है, ये जो प्लेन उड़ रहे हैं, या ड्रोन, अगर किसी को ड्रोन यूज करना है तो उसके क्या। तो सबसे पहले अगर कोई चीज हमारे दिमाग में आती है तो हम उसको रिसर्च करते हैं कि हाँ क्या अवेलेबल चीजें हैं। अगर हम रिसर्च की बात करें, पीएचडी की बात करें, गाइड चुनने की बात करें कि कैसे, अगर पीएचडी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सारा एक्सप्लोर कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। हमारा इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉ में है, तो क्रिमिनल लॉ में कौन से 10 टॉपिक, लेट्स से बेल, रेप लॉज, बीएनएस, आईपीसी से बीएनएस आया है, उसमें क्या डिफरेंस है, लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। उसके बाद जब इंटरेस्ट नैरो डाउन कर लिया हमने कि हमें कौन से एनवायरमेंट लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, टैक्स लॉ, उसके बाद टॉपिक पे जाना है कि हमें क्या, किस टॉपिक पे रिसर्च नहीं हुई है या किस टॉपिक पे ज्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। सर वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, जैसे जनरली मटेरियल अवेलेबिलिटी में सर आसान होता है रिसर्च करना, और मटेरियल नहीं तो जान निकल जाती है ना सर। यही तो रिसर्च है। जो चीज अवेलेबल है उसको हम रिसर्च कैसे करेंगे सर? लेकिन मतलब कैसे, मतलब ये कैसे हम जान पाएंगे जिस पे अवेलेबल नहीं मटेरियल? तो गाइड भी होगा, वो आपसे डिपेंडेंट हो जाता है, फिर तो कहेगा कि तुम करके आओ, मैं देखता हूँ। गाइड, जो गाइड है, यही तो आप गाइड क्यों है वो गाइड, इसीलिए कि आपको गाइड करेगा कि क्या चीज अवेलेबल नहीं है और क्या चीज आपको कैसे करनी है। कोई रिसर्च नहीं है उसी को तो रिसर्च करना है, जो चीज ऑलरेडी रिसर्च है उसको हम कैसे रिसर्च करेंगे। कुछ रिकमेंड करेंगे कुछ जनरल जिसको हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, और अगर ये पता लग गया कि हमें हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिसर्च नहीं हुई है। रिसर्च का मतलब ही यही है। अब हम कोविड वैक्सीन की बात करें, कोई प्रॉब्लम आई तो नया रिसर्च आया। अगर हम कोई नए लॉ की बात करें कि कहाँ लॉ, जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो क्यों आते हैं, रिसर्च के बेस पे आ रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको चेंज करना चाहिए।
जो सर, जजमेंट्स आते हैं कुछ वो भी रिसर्च के बेस पे आते हैं कि हाँ रिसर्च क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम अगर पीएचडी में जा रहे हैं तो रिसर्च करते हैं कि नई प्रॉब्लम कहाँ, सोल्यूशन क्या है उसका। नहीं सर, पीएचडी नहीं जाना है हमें, मतलब बट ये चाहता हूँ कि सर एटलीस्ट जैसे लॉ के ड्यूरिंग आप बता रहे हो 3-4 पेपर हो, तो कुछ उसके इम्पैक्ट फैक्टर भी आने चाहिए। वो आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ कुछ किया है मैंने कंक्रीट कुछ, और वो सर इसी टाइम पे जब करते करते होता क्या है कि आप फिर एक होता नहीं है कि अब तो यार कुछ हो ही जाए, एक पेपर पब्लिश ही हो जाए, तो उस सिचुएशन से बच के थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे सर। और कोई रिसर्च ये पेपर जनरल्स के नाम कुछ बता सकते हैं जिसको हम लोग को पढ़ना चाहिए, हम सभी लोग नए हैं जैसे, कोई जनरल ये जिसको देखते रहना चाहिए। बहुत सारे जर्नल हैं, बहुत सारे जर्नल है, बहुत सारे टॉपिक है। सो ये सारी चीजें ना बहुत सब्जेक्टिव है कि कौन सा जर्नल हमें पब्लिश करना है। सबसे पहले तो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यू शुड नॉट गो इनटू ऑल दैट कि क्या हमें क्या पढ़ना चाहिए, मतलब क्या उसमें कहाँ जाना चाहिए, क्या रिसर्च। सबसे पहले तो हमें बेसिक आइडिया लेना चाहिए कि भाई रिसर्च कैसे हम करें, रिसर्च को कैसे सीखें, क्या टॉपिक से हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से यू कांट गो कि हमें एक दिन में ड्राफ्टिंग आ जाएगी। अभी तो सबसे पहले यू आर स्टार्टिंग विद द इनिशियल फेज, सो यू डोंट गो इनटू कि हाँ मुझे बहुत बड़ा लॉयर बनना है, हमें रिसर्च पब्लिश करनी है। सबसे पहले तो यू स्टार्ट विथ रीडिंग, कि अच्छा ये जो आपका इंटरेस्ट है, यू स्टार्ट रीडिंग द जजमेंट कि आज यू जस्ट मेक अ प्लान कि आज हमें 4 पेपर पढ़ने हैं या 4 जजमेंट्स पढ़ने हैं। देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये चीज है, आज मैंने देखा क्रिमिनल लॉ है, आज मैंने देखा सिविल लॉ है, या आज मैंने देखा इन्वायरमेंटल लॉ है। इतने सारे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं, इन्वायरमेंट में क्या क्या पॉलिसीज जो हमें इफेक्ट कर रही हैं, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। सो दीज ऑल आर द रिसर्च मटेरियल। नोबडी कैन टेल यू कि हाँ ये ऐसा, ये बहुत सारे टॉपिक हैं। और रिसर्च का काम ही यही है कि हमें नई चीज ढूंढ के उसको उस पे पेपर लिखना। जो चीज ऑलरेडी लिखी हुई है उस पे हम क्या लिखेंगे। हमें तो अगर पेपर हम लिख रहे हैं तो हमें तो नया लिखना है ना, वी कांट गो कॉपीराइट। यस सर। तो ये सारी चीजें बहुत, आप जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट आएगा, जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यू विल गेट टू नो कि हमें ये करना है। अच्छा हमें रिसर्च करनी है, ये टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का है, ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक आया, उसको रिसर्च किया, ऑनलाइन गूगल पे देखा, बुक्स देखी, लाइब्रेरी में बैठा कि हाँ इस पे कुछ है क्या, इस पे हमें क्या क्या चीजें हैं। तो जो ऑलरेडी चीजें हैं उसी को हम सेग्रीगेट करते हैं, उस पर कुछ नया अपना ओपिनियन देते हैं। अपने आर्टिकल अगर हम लिखते हैं, कोई रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिखते हैं, तो वो लेट्स सपोज कंज्यूमर एक्ट में चेंजेस आए, तो क्या चेंजेस आए, पहले एक्ट में क्या था और अभी एक्ट में क्या है। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन चेंज हुआ है, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिडिक्शन को चेंज किया है। लेकिन दीज आर थिंग्स यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सर जैसे आप बता रहे हैं सर कंज्यूमर वाला, ये तो मतलब सॉरी सर अगर मैं बॉदर कर रहा हूँ आप। बोले आप। ओके सर, इसमें जैसे आता है कि आप जैसे बता रहे हो 2 टॉपिक ले लिया, एक टॉपिक ले लिया कंज्यूमर प्रोडक्शन, तो बट सर ये हम तो एक अप्लाइड चीज पढ़ रहे हैं ना कैमरा यू स्विच सर। एक्चुअली सर सॉरी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक्चुअली कपड़े नहीं पहना हूँ, दैट्स व्हाई सर। ओके सर, ओके सर। उसमें है कि 2 चीजें कॉमन है, दोनों अलग अलग है सर। और दोनों में आप देखेंगे सर, एक आप ये जैसे बता रहे हो कंपेयर करना, ये तो एक स्टडी हो गई सर ना, इट्स नॉट रिसर्च सर। तो स्टडी, आप स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च करना है तो यू टेक अ, नहीं इट्स ओनली स्टडी सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ रिसर्च में करते क्या है फिर, नया चीज बता, आप अपने नए थॉट को डालते हो उसमें, या नए सलाह देते हो, या वे फॉरवर्ड बताते हो, क्या करते हो फिर। रिसर्च में हम ये देखते हैं कि कोई अपना ओपिनियन देते हैं कि भाई मैंने ये टॉपिक पे रिसर्च किया और इसमें ये इसका ओपिनियन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। या कोई सब्जेक्ट, कोई ऐसा प्रॉब्लम ले लिया कि भाई इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, इस प्रॉब्लम का एग्जांपल दूं, मैंने एक सोचा है रिसर्च करने के लिए अपने लिए, एग्जांपल दूं। Abhi, we will discuss it later on because there are many students. Lot many students. If you have anything, the topic. So we are deviating the today's session. We are here to discuss about the probabilities. We are avenues of the law. अच्छा सर, probability में सर abroad की probability please बताइए सर। You can connect me 1-to-1 for this. What are the research and how we can do the research and what are the topics? मैंने एक क्या सोच के रखा है, तो मैंने बोला इनको अगर थोड़ा ऐसे। नहीं, no worry. What will be the format of research? क्या अवरोध की अपॉर्चुनिटी के बारे में। What will be the format of research? यार फॉर्मेट ये सारी चीजें प्रोसीजरल में, दीज आर थिंग्स यू कैन
these are the procedure, this is defined for जो रिसर्च का फॉर्मेट है वो कोई डिफाइंड नहीं होता कि हाँ कहाँ कैसे किस फॉर्मेट में करना है. हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं. इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि हाँ फॉर्मेट ये पर्टिकुलरली ये करना है, ये सारा 1 2 3 हमें डिफाइन करना है. सर एब्रॉड का क्या लाइफ हो सकता है सर, लॉ के बाद कैसे हो सकता है सर, इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं. प्लीज सर अगर पॉसिबल है तो बताइए. क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है अब्रॉड में? जी सर. किस चीज की? एब्रॉड जाने की सर, एब्रॉड में जॉब के चांसेस बन सकते हैं आफ्टर लॉ? लाइक हाँ बिल्कुल बन इंटरनेशनल सकते हैं. अभी लिटिगेशन. आप किस ईयर में हो? सर मैं अभी तो फर्स्ट ईयर में हूँ सर, LLB फर्स्ट ईयर. तो सबसे पहले देखो, जब तक क्या है कि हम फर्स्ट ईयर में और हम 5th ईयर की बात सोच रहे हैं. अभी तो सबसे पहले आपको लॉ पढ़ना सीखना है कि लॉ कैसे पढ़ना है, लॉ किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं. अब्रॉड हम LLM के बाद LLM के लिए अब्रॉड जा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें 2nd ईयर के बाद आती हैं. अभी तो हमारे पास बहुत एवेन्यूज हैं, लेकिन सबसे पहला जब हम एंट्री करते हैं, अभी आपकी एंट्री है, कैसे करना है, दैट इज अ प्रोसीजरल पार्ट. यू कैन कनेक्ट ऑनलाइन, यू कैन कम टू मी कि क्या है प्रोसीजर. अगर आपको कोई कहीं पर्टिकुलर ज्वाइन करना है, देयर सेवरल लॉ कॉलेज, यू कैन गो फॉर LLM, आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं. बट दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू टेल यू टू हाउ टू अप्लाई द स्कॉलरशिप. हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज है, अभी हम एवेन्यूज की बात कर रहे हैं. सर आई हैव एन क्वेश्चन. हाँ प्लीज. ऐसा करते हैं, सुनो, क्वेश्चन वी विल टेक last 15 minutes, right? So first we'll talk about the avenues, then we'll take the question, right? So we were talking about research and writing. Research करना, writing करना, publish blogs. We were talking about when you are in first year or second year, you talk to your seniors. Second year, if you are in first year, first semester, talk to the second semester senior. Talk to the third semester senior कि उन्होंने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया, क्या क्या चीजें की, क्या रिसर्च किया, कहाँ इंटर्नशिप की. This is very important as a part of lawyer, that you have to come out of your comfort zone. You have to come out for speaking. There are a lot many students who are not even comfort to speak. They are hesitating. So these are the platforms you can utilize to go away with the hesitation. But if you are into law, you have to remove it. Then there are 5 points checklist, we have to go about it. Legal writing. Sorry, there was some network issue.
So we were talking about the checklist, legal writing. So first start with the legal writing. There should be clear, precise drafting, research, finding, reading, oral communication. As a lawyer, you must have a good oral communication, analytical reasoning, networking, time management. As a 3-year law student, you can make a plan for your 3 years. Year 1, you can explore broadly for try one moot court, one internship, join a society committee. So as a law student, all these skills are very important for you. Second year, you can widen your internship program. You can join the second different internship. Tax in first year, you can just join any court litigation. Second year, you broaden your internship program. You can apply internship in law firm. Then after completing your second year, as you are all in third year, so you can narrow down with the semester wise system. You will plan, you can plan 1 year, you can write a research paper. Second year, you can plan for internship program. Third year, you can plan for different internship in different field. So these are the avenues you can explore for. Now we can take questions. सर कोर्ट्स अलाउ करते हैं फर्स्ट ईयर में? हाँ बिल्कुल, कोर्ट को इंटर्नशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट्स क्यों नहीं अलाउ करेंगे? ओके, मैं जैसे अहमदाबाद से हूँ तो गुजरात कोर्ट या हाई कोर्ट में या यू कैन ज्वाइन एनी लॉयर, यू कैन ज्वाइन एनी लॉयर. ओके, हाँ तो एक्चुअली मेरा तो अभी कॉलेज स्टार्ट होगा 10-15 दिन के बाद, तो अभी आई डोंट हैव एनी फील्ड लाइक, मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं है इतना. तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग, यू कैन एक्सप्लोर कि हम इंटर्नशिप कहाँ कर सकते हैं. यू कैन विजिट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या चल रहा है. हाई कोर्ट जाके देख सकते हैं हाई कोर्ट में क्या चल रहा है. ओके, और जैसे सर फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स, आई नो यू आर वेरी क्यूरियस टू लर्न थिंग्स कि हमें ड्राफ्टिंग आ जाए, हमें रिसर्च आ जाए, हम अगर अब्रॉड जाना है तो हमें अब्रॉड जाने के लिए अभी सारी चीजें पता चल जाए. बट गो स्टेप बाय स्टेप. एज अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, लॉ कैसे पढ़ते हैं, केस मटेरियल क्या होता है, बेयर एक्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट्स की हायरार्की क्या होती है, जजेस को कैसे बुलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को क्या बोलते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सिविल जज होते हैं, फिर हाई कोर्ट के जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड फैमिली जज अलग होते हैं. तो हमें हायरार्की ऑफ जजेस, ये बेसिक थिंग्स एज अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट वी शुड नो अबाउट सब्जेक्ट्स. सर मैंने थोड़ा कोर्ट्स के लिए मतलब स्टेज तैयार किया था, जैसे पहले फर्स्ट स्टेज पे लोक अदालत होती है, ग्राम पंचायत, ग्राम न्यायालय, ये सब. हाँ, तो ये आपको, ये एज अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट यू शुड नो ऑल दीज. ओके, जब आपने जब आपने पढ़ा, फिर उसके बाद हम गए लॉज, कितने लॉज हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे. सेकंड पे आते हैं स्पेशलाइज्ड जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो. ठीक है, उसके बाद इफ यू रेड अबाउट इट दैट्स गुड. ओके, हाँ, if you read, so I'm telling as a general, all the students who are in first year, they can go about it कि कैसे कैसे हायरार्की होती है. कोर्ट विजिट करने गए, कोर्ट में क्या क्या चीजें हो रही है ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट. ओके सर. सर जैसे it is as everybody says कि it is harder for first generation lawyers to get clients or clients, but these all are third year or after that concerns. I am concerned how should I approach advocates or anyone for internships, because I have no connection in that matter, and people in my college are also suggesting कि
join politics. College politics also helps in building connections and all. So, sir, what would you suggest? How should I make connections? So this Because is very important questions and good questions, I must say. So how to you can find online, there are many things available online. You can go Law Octopus, and there are several websites you can search, and you can find email ID of several law firms, advocates, individual firms, corporate companies, and you can mail your CV. You can visit the court, district court, you can visit the court, you can see कि कौन से एडवोकेट कहाँ, if you see कि कोर्ट में जाके हम बैठ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं कि अच्छा कोई अगर अच्छा लग रहा है, वी कैन अप्रोच द एडवोकेट कि सर आई वांट टू डू इंटर्नशिप, प्लीज गिव मी योर ईमेल आईडी. You can write them that sir we met and I want to do internship under your guidance. सर आप कहाँ बैठते हैं सर? मैं राउज एवेन्यू बैठता हूँ. ओके, दैट्स इन दिल्ली. Sir, will you be there with us tomorrow? Yes. सर तो मैं अहमदाबाद से हूँ, I'll be not possible. तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे दिल्ली, then we can meet. Okay, no problem, sir. And certificates are online available. So you can connect with Sarthi Foundation for. Okay, no. Okay, no problem, sir. और किसी को कोई query? Yes, sir. Sir. हाँ बताओ. Sir, I want to ask something, sir. So everyone is saying that after LLB you have to spend 5 years if you want to go in litigation. So, sir, my question is, from this year, sir, how can we reduce that 5 years since we are going to start from first year, sir? Is there any way out we can reduce that 5 year from this? There is no such rule that you have to spend 5 years after your LLB. This is about the practice. Yes, sir. Sir, you can be excel after 2 years. So why people are saying 5 years? So that you can have the basic understanding of law, basic understanding of procedure. You can go independent if you think that you have completed your internship, you have skills within 2 years. So you can join after 2, you can go independent after 2 years, 3 years. So there is no such kind of rule that. Sir, one question, sir. Hello. गाइस मे बी अभी सर का कनेक्शन लूज हो गया है, तो वेट करते 2 मिनट. ठीक है, बी पेशेंस प्लीज. हाँ, जो आप लोगों को क्वेश्चन थे जब तक सर ने, तो मैं बात कर लेता हूँ आपसे. हाय, माय नेम इज साहिल मल्होत्रा. आई एम फ्रॉम सार्थी काउंसिल फाउंडेशन. आप लोग जब अभी कॉलेज आए होंगे या आपके सीनियर होंगे तो वो लोग जानते हैं कि हम किस तरीके के प्रोजेक्ट चलाते हैं. और बहुत सारे लोगों का डाउट था कि भैया कोर्ट कैसे जाना है, इंटर्नशिप कैसी मिलती है, क्या मिलती है. देखिए, जहां तक हमसे होगा हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम कोड रीड वगैरह कराते हैं. डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ सर, आ गए प्लीज सर. हाँ बोलो अंकित. Yeah, sir. Parallelly along with a college, I am also preparing for UPSC, and my ultimate aim is that कि मुझे सर्विस डिलीवरी को efficient, affordable और accessible बनाना है. So tell me, sir, कि अगर as you know UPSC is a highly unpredictable exam. So tell me कि मैं इस law field में मैं कैसे उस aim को achieve कर पाऊंगा. As of now, I'm searching the options कि मैं किस तरीके से कर पाऊंगा. तो आप इसमें कुछ contribution. देखो, if you are going about the option, then you are not confident about your future. If you are thinking कि UPSC is very tough exam and we should go of the option also, so we are not confident that I will be clearing that exam. So if you are focusing on one thing, so you should focus on and think about the thing that I will clear within 3 years or 5 years, whatever down the line, 1 year. That, so don't go for options. If you are focusing on one thing, go for one thing. Yes, sir. Sir, one question, sir. हाँ. सर एक्चुअली जैसे हमारा कॉलेज 8 से 2 बजे तक ही रहता है.
तो इज देयर एनी ऑप्शन इन इंटर्नशिप कि 2 बजे के बाद कोई सीनियर हमें रख ले या मतलब कुछ हाँ, सिखा दे किसी या आप सीनियर समथिंग? से बात कर सकते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद मोस्टली कोर्ट 3 बजे के बाद खत्म हो जाते हैं। खत्म इन द सेंस, बट तो लास्ट मैच हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे 2 बजे के बाद ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। कुछ कोर्ट्स रहती हैं तो जिनके पास यू कैन कनेक्ट विद द सीनियर, यू कैन कनेक्ट विद द लॉयर कि हाँ भाई हम 2 बजे के बाद आना चाहते हैं। सो देयर आर लॉट सर मेनी उसमें लॉयर कैन हेल्प यू। तो सर उसमें हमें जैसे एडवोकेसी जो कोर्ट रूम प्रोसीजर्स है वो सब सीखने को नहीं मिलेगा, बट आई गेस अगर चेम्बर्स में रहेंगे तो फाइल रीडिंग वगैरह से देखिए, कुछ चीजें तो ग्रैप्स तो एज अ लॉ स्टूडेंट अभी तो आप कुछ भी आपको सीखने को मिलेगा, सो यू विल हैव द ऑप्शन। कोर्ट भी जा रहे हैं तो यू आर लर्निंग समथिंग, चेम्बर में बैठ भी रहे हैं अगर किसी सीनियर के साथ तो यू आर लर्निंग समथिंग। सो डोंट गो अबाउट कि हमें ये सीखना है, यू जस्ट गो कि हमें कुछ सीखना है। आज हम कोर्ट गए तो आज हमने ये एक चीज सीख के आए, आज कोर्ट देख के आए, आज ड्राफ्टिंग क्लाइंट डीलिंग देख के आए कि क्लाइंट डीलिंग कैसे होती है। सर ये कम्युनिकेशन स्किल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं सर, इसके लिए कैसे बता दीजिए सर। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल सबसे इम्पोर्टेंट कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, बात करें, पढ़ें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। जजमेंट्स पढ़ो, मेक अ प्लान ऑफ रीडिंग, हैबिट of reading 1 judgment, 2 judgments daily. This will improve your communication altogether, writing, speaking. उसका रिफ्लेक्शन मतलब बोलने में आने लग जाता है सर पढ़ते पढ़ते। So once you will start, you will feel it. सर मेरा एक डाउट था कि जैसे कोई पार्ट टाइम कोर्स वगैरह कर लेते हैं तो वो हमारे इंटर्नशिप मिलने में कुछ फायदा करेगा? इंटर्नशिप पार्ट टाइम कोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता इंटर्नशिप से। मतलब पार्ट टाइम कोर्स मतलब कि कोई स्किल कोर्स, जैसे कि मैंने इंटर्नशिप का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंटर्नशिप यू कैन राइट टू फर्स्ट ईयर एज अ लॉ स्टूडेंट्स, इट विल नॉट इफेक्ट कि हाँ आपने कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम कोर्स किया है तो आपको अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी या जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलेगी। मतलब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है या फिर सिमिलर ही रहती है? जैसे मैंने सिमिलर ही रहती है। मैंने स्टेनो सीख रखा है क्योंकि मैं एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो कुछ काम कर सकता है उसमें? वो जिनको अगर जरूरत होगी, किसी एडवोकेट को जरूरत होगी, ही माइट हेल्प यू आउट। लास्ट 3 क्वेश्चंस। हेलो सर, मेरा एक डाउट था। सर जैसे मैंने कई सारे सेशंस लिए थे रिलेटेड कैसे नेविगेट करना है 3 साल में, क्या क्या करना है, और ये नहीं समझ आ रहा कि सभी ने बताया कि कोर्सेज कर लो, ड्राफ्टिंग वगैरह सीख लो, बेसिक तो आना ही चाहिए। अब ड्राफ्टिंग सीखे कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से सीखे और कैसे कर सकते हैं इसे? तो मैंने आपको यही बताया कि ड्राफ्टिंग यू कैन नॉट लर्न ड्राफ्टिंग इन 1 डे। अभी तो आपने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया है, सबसे यू स्टार्ट योर कोर्स मटेरियल, यू स्टार्ट रीडिंग योर जजमेंट। Even as on today, I cannot say that I am a good drafter after so many of experience. So drafting will take time. Don't go by saying कि हाँ ड्राफ्टिंग हम कहाँ से सीखें। ड्राफ्टिंग कहीं कोर्स करने से या किसी के बोलने से या पढ़ने से ड्राफ्टिंग you will not learn drafting. Drafting will take time. Yeah, definitely you can work it on. ठीक है, उसके बेसिक्स पर कैसे काम कर सकते हैं कि केस लॉज तो पढ़ लेते हैं? सबसे पहले एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यू स्टार्ट विथ रीडिंग जजमेंट्स, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग जजमेंट, मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर writing 1 paper in your first semester. So these are the basic things you can do. Don't skip the process. सर पेपर का मतलब आपका रिसर्च पेपर से है क्या? पेपर का मतलब आपका रिसर्च पेपर से है? रिसर्च पेपर से है। ठीक है जी। कुछ भी राइटिंग, इट इज नॉट अबाउट रिसर्च पेपर। यू स्टार्ट विद द राइटिंग कि एक छोटा सा ब्लॉग लिखना है, एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है।
रिसर्च हाँ रिसर्च पेपर में माइट टेक टाइम, यू नीड टू लर्न प्रोसीजर, यू नीड टू स्टेप्स की क्या होता है. डोंट गो इन रिसर्च एंड ऑल journal publishing. You just start with the simple writing, simple article, blog. You read one judgment and make a paragraph of that judgment, ki what this judgment says, what are the facts, what are the issues. Start with that. That is also writing. सर जज जुडिशियल सर्विस के लिए जिसे क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे हम See, judicial services के लिए सबसे important, which I told you earlier also, कि start reading judgments, start reading newspapers, start reading bare acts which are in your subject or syllabus. So bare acts are very important for judicial services. सर तो हमें फिर लिटिगेशंस इंटेंसिव ड्राफ्टिंग पे कम फोकस करना चाहिए. मैंने अभी बताया कि हमें ना बहुत सारे ऑप्शंस पे अभी नहीं जाना, हमें वी गो वन बाय वन. एज अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें, जब हमें पढ़ना ही नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे और क्या रिसर्च करेंगे. तो सबसे पहले इंटर्नशिप और ये सारी चीजें, यू आर इन फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सो डोंट गो इनटू इंटर्नशिप, drafting, or writing. You just start with the reading. You start reading your case material first. जब केस लॉ समझना आ जाएगा, अभी तो you will not even understand कि केस मटेरियल में कैसे फैक्ट्स निकालने हैं, कैसे इश्यूज निकालने हैं. So don't go into drafting, ये वो सारी चीजें. You start with reading. This is your first task, I should say. You start reading your case material and make a note of the judgment. These are the facts, these are the issues. Make a note of 5 judgments. Then go for, okay, अब ठीक है, अब रिसर्च पता चल गया, अब ये क्या, then you go for writing. एक आर्टिकल लिखते हैं या उस जजमेंट का नोट बनाते हैं, इस जजमेंट में क्या बातें कही गई हैं. Sir, one question, sir. ओके सर, थैंक यू सर. फ्यूचर में आपसे कनेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? You can take my number, email ID. I will write it down the chat box. ओके सर. सर आपको केस के लिए बोला था आपने सर कि केस फैक्ट्स और वो करना कंटेंशंस और वो एक मैंने एग्जाम. ओके ओके. Sir, you had to start your LLB journey from beginning again, sir. Then, sir, how you would spend your first year if you had to start from day one, sir? Please tell me this. You can, I told you, you can start with reading. You can just focus on the case material. Just focus on the syllabus. Just focus on the law subjects. What are the laws? You just understand the basics. कि क्या है लॉ में, क्या है बेयर एक्ट्स, कौन कौन से बेयर एक्ट्स हैं, केस मटेरियल में जजमेंट्स कैसे पढ़ते हैं, जजेस का नाम कहाँ लिखा होता है, जजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, फैक्ट्स कहाँ लिखे होते हैं, साइटेशन किसको बोलते हैं, एसएससी में अगर कोई रिसर्च करनी हो तो वो कैसे करते हैं. सो यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स, देन यू गो फॉर फर्दर स्किल. लास्ट क्वेश्चन. सर कॉर्पोरेट लॉ के लिए मतलब लोग एडवाइस करते हैं कि आपको जल्दी जनरली कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर लेना चाहिए इफ यू लाइक वांट टू सक्सीड इन कॉर्पोरेट करियर. तो सर मेरे का सवाल था कि मैंने बहुत से लोग देखे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्लस एलएलबी का कोर्स करके फिर वो लोग अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं. तो सर मैं पूछना था कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, लाइक टू गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट अलॉन्ग विद एलएलबी और द सीएस प्लस एलएलबी. देखिए, कभी भी इफ यू हैव अ डिग्री, सो कोई भी प्रॉब्लम का, अगर सीएस इज ऑल्सो गुड डिग्री, सीए इज ऑल्सो गुड डिग्री, कि अगर आप सीए के साथ, सीए इज मोर फोकस ऑन अकाउंटिंग, सीएस इज मोर फोकस ऑन कंप्लायंस. सो यू कांट से कि सीए ज़्यादा अच्छा होता है और सीएस कम अच्छा होता है. आपका इंटरेस्ट कहाँ है, अकाउंटिंग में है या कंप्लायंस में है. और कॉर्पोरेट लॉ में जाने के लिए कभी भी सीएस या सीए की जरूरत नहीं है. इफ यू आर इनटू लिटिगेशन, यू कैन गो इनटू एनी लॉ.
ओके सर, बट मतलब ये मतलब मैंने लिंक्डइन वगैरह में भी देखा था और जितने सीनियर से बात करी तो उन्होंने बोला था कि CS प्लस LLB का कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रेफर करते हैं देखो टू गेट प्लेस्ड इन कॉम्बिनेशन बहुत कॉर्पोरेट अच्छा लॉ। होता है, यू कैन गो इनटू सीए, बहुत सारे ऐसे हैं जो सीए भी हैं, CS भी हैं, देन लॉ किया हुआ है, बीटेक के बाद लॉ किया हुआ है, तो दिस ICWA के बाद लॉ किया हुआ है, तो यू कैन गो इनटू इट कि हाँ हमें ये डिग्री, हमें LLM के, बहुत सारे लोग LLM कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके आगे, इफ यू हैव टाइम, इफ यू वांट टू डू फर्दर कोर्सेज, LLM करना है, किसी को CA करना है, किसी को CS करना है, किसी को बीटेक करना है, तो यू हैव ऑप्शन टू डू इट। ऐसा कोई ये नहीं है कि इसके साथ ही करना है। ओके, और सर एक चीज़ और थी कि अगर वैसे CS अगर परस्यू करना भी है तो उसका मैंने स्ट्रक्चर देखा था कि जो इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद वो मैंडेटरी 1.5 साल का आर्टिकलशिप करना होता है। हाँ। वो फुल टाइम होता है कि मतलब आपको सुबह से शाम तक आपको काम करना है, तो वो मतलब डिग्री करने के बाद ही करना है जब LLB पूरी हो जाए तो, नहीं, वो या आप फिर कभी भी कर सकते हो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, वो दैट इज रिलेवेंट विद द structure, that first you have to clear foundation, then you have to go for executive, then you go for professional. So after executive level, then you have to go for internship, or let's say articleship for 3 year, 1 year, 2 years. So you can do it after LLB or between that, as per the law. Okay, ठीक है, thank you sir. I would like to sincere thank you our speaker and Sarthi Kanun Seva Foundation for making this session possible. Thank you everyone for your participation and valuable time. We hope you found the session informative and meaningful. Thank you and have a great day. Thank you so much, guys. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, Abhinav sir. Rohan. Thank you. Thank you, Rohan sir. Thank you, San sir. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you. किसी का कल के लिए कोई डाउट होगा तो वो रुक सकता है, पूछ सकता है कि किस तरीके से क्या कौन कौन, कुछ भी डाउट है कि कल के लिए, बाकी लोग प्लीज लीव कर दीजिए। सर कल कितने बजे जाएंगे और कैसे जाएंगे? कॉलेज के डायरेक्ट थ्रू आएंगे? एक एक करके पूछ लीजिए प्लीज। सर्टिफिकेट का मैं अहमदाबाद से हूँ और दिल्ली में बोल रहा हूँ। भाई आपकी अटेंडेंस देख लेंगे कल की और आज की, अगर होगी तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा रोहन जी के द्वारा, ठीक है? सर कल कैसे आना है? डायरेक्ट कॉलेज या आपकी टीम रहेगी कॉलेज पे? जैसे भाई कौन बोल रहा है? आशीष सर। आशीष भाई आपको डायरेक्ट ही आना है, बाय मेट्रो आना है। अभी सारा जो मैसेज वगैरह है ग्रुप पे आ जाएगा कि कौन सी नियरेस्ट मेट्रो है, क्या टाइम रहेगा, तो आप लोग ग्रुप में बात कर सकते हैं। मे बी मैसेज वाला ऑप्शन खुला होगा तो आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, साथ में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर सबको हम लोग साथ लेके आएंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी ह्यूमनली। 80 कुछ 100 बच्चे टोटल है, ठीक है? और आप अगर खुद से चीजें देखेंगे जानेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर कुछ लोग दिल्ली में नहीं भी आए हैं। बाकी कोई भी इशू रहेगी तो टीम रहेगी, आप कॉल कर सकते हैं। सॉरी सर, we have to mark the 2 days attendance. क्या कह रहे हो भाई? थोड़ा नॉर्मल बोलो सर आज की अटेंडेंस मिल जाएगी। मैंने वैसे भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, डेली ले रहा हूँ, कल भी लिया था, आज भी लिया है। कितने लोग मीट पे अटेंड कर रहे हैं, और आपको अभी वो भेज दिया जाएगा गूगल लिंक, उस पर आप लोग मार्क कर दीजिएगा, ठीक है? फिर अपने एंड से उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन कौन फेक लगा रहा है और कौन कौन ने सेशन लिया है। होपफुली आपको सबको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ यूजफुल लगा होगा। सर ने अपने बारे में इतना कुछ बताया, पर्सनली उन्होंने सबको समझाया। बाकी आप लोग कल उनसे मिलिए, आइए हम लोग मिलते हैं राउज एवेन्यू में, ठीक है? तो फिर अदरवाइज आप लोग प्लीज लीव कर दीजिए। यूनिफॉर्म में ऐसे आ सकते हैं, फिर ऐसे नॉर्मल क्लोथ्स में भी चलेगा, लाइक वो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स और शूज में आना है ऐसे? देखिए वैसे आएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप एक कोर्ट में आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कल को आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी वहीं जाना है, तो आप उसी पर्सनैलिटी में आएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कंपलसरी अभी नहीं रखा है, ठीक है? क्योंकि आई नो कि बहुत बच्चों के पास नहीं होगा, तो कंपलसरी फॉर्मल मतलब चल सकता है, फॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा हो तो हाँ चल सकता है, मतलब एक सोबर ड्रेस करके आए ताकि वो कोर्ट रूम में अच्छा लगे। ठीक है, ड्रेस से कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों को मेरे को पता है सब फर्स्ट ईयर से है, तो कई लोगों ने उसको परचेज नहीं करा होगा, कई लोगों के पास नहीं होगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप लोग नॉर्मल आ सकते हैं। और कोई डाउट? ये फॉर्मल वगैरह जो कोर्ट रूम की होती है, ये स्पेसिफिक कोई जगह है जहाँ पे मिल जाती है अच्छी?
अच्छी जगह भाई बहुत सारी है। सीपी में बहुत सारी है जहाँ अच्छी जगह मिलती है। बाकी रेमंड वगैरह से अधिकतर लोग लेते हैं, एडवोकेट्स लेते हैं, तो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर अच्छा पैसा है तो 8-10 हजार का ब्लेजर सिलवा सकते हैं। अदरवाइज आप कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हमारे कॉलेज के पास जो कोर्ट पड़ता है वो 30 हजार ही पड़ता है, तो वहाँ पे 1500-2000 के अंदर ब्लेजर मिल जाता है नॉर्मल। आप उसको भी पहनेंगे तो अच्छा चलता है। फिटिंग और बाकी स्टिचिंग सही कहते हैं उसके। वो तो भाई आपको देखना पड़ेगा, मैंने कहीं वहाँ पे वियर नहीं कर रहा। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके जी, ठीक है। और कोई डाउट भाई किसी का? ठीक है जी, चलिए लीव कर आप ये ग्रुप बनाएंगे आगे ड्राफ्टिंग और उसके लिए? ऑलरेडी ड्राफ्टिंग का ग्रुप बना है टेलीग्राम पे। पहले एक बार एक सेशन अच्छे से फुल एंड हो जाए, कल हम लोग मिलते हैं, देन मैं बताता हूँ कि हम लोग और क्या क्या कराते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सब कुछ मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहता है बोलना। Sir, what will be the timings for tomorrow? आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा मैम। I will share in the group. रोहन भाई बता देना सबको, एक बार मैसेज कर देना, ठीक है? मैं मैसेज कर देता हूँ आप लोगों को। चलिए, और थैंक आप यू, लोग गुड सब नाइट। टाइम पे आइएगा। ओके। और आप में से कौन था अभी जो बोल रहा था कि मैं बिल्कुल ही कपड़े उतार के, यार ऐसे तो नहीं बोलते ना मीटिंग में, थोड़ा तो आप लोग प्लीज देखिए। कोई भी था XYZ, इस तरीके से मीटिंग में नहीं बोलते हैं किसी को कि मैं कपड़े ही नहीं पहना हूँ। कोई भी हो, मुझे नाम याद नहीं है। अभिनव था, प्लीज अभिनव। जो भी था प्लीज नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेगा। किसी भी मीटिंग में जो है ना, चलो ठीक है सर इतना इनफॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, बट वो एक AOR है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। अगली बार से कोई ऐसे मतलब स्टूडेंट्स को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा किसी भी मीटिंग में। कैमरा नहीं ऑन करना 10 एक्सक्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पे गर्ल्स भी है, बॉयज भी है। अगर ये बोलना है कि मैंने कपड़े नहीं पहने, तो ये इस तरीके की लैंग्वेज प्लीज यूज मत कीजिए। अच्छा नहीं लगता है। एग्जैक्टली। ठीक है जी, थैंक यू। लीव कर थैंक यू सकते सो हैं आप मच। लोग। थैंक यू भैया। कल थैंक यू मिलते हैं, रनवे। बाय बाय, थैंक यू टेक केयर। साहिल।